students, how are you all? I hope you all are very good and must be doing the studies very nicely. So today students, we are going to explore the science chapter class 3rd, which is chapter number 6 about be safe. Okay, so in this chapter students, today we are going to learn about all those safety measures which we all should follow at the different places to keep ourselves safe. Now, why do we need to keep ourselves safe? So the reason behind of keeping ourselves safe is that if we do not follow these safety measures, so we or any other could get or occur in the condition of accident. Okay, the accident could take place because of our carelessness, and then we or another person could get injured in the accident. So to avoid such conditions, we all have to follow certain rules so that we can prevent these conditions of the accidents to occur. Okay, so let's start the chapter. So we have the topic first of all, safety rules. Accidents may occur anywhere, anytime without giving any warning, but we must understand that accidents generally occur due to carelessness. So if we all take a few safety precautions, we will be able to avoid accidents both inside and outside our homes. To avoid an accident, we must be careful and alert. We should try to follow safety rules all the time and everywhere. Let us read about some safety rules. तो व्हाट दे सेइंग है स्टूडेंट्स कि एक्सीडेंट्स कभी भी कहीं भी हो सकते हैं विदाउट एनी वार्निंग. ओके, बट हमें ये चीज समझनी है कि एक्सीडेंट्स जनरली होते क्यों हैं. तो उनका रीजन है हमारी केयरलेसनेस यानी कि हमारी लापरवाही. तो यूजुअली एक्सीडेंट्स हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, बट अगर हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हैं तो हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, भले आप अपने घर के अंदर हो या घर के बाहर. तो एक एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा केयरफुल एंड अलर्ट रहना चाहिए एंड उसके साथ साथ कुछ सेफ्टी रूल्स को हमेशा हर जगह पे फॉलो करना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हमें रोड पे फॉलो करने हैं. नंबर 1, वॉक केयरफुली ऑन द रोड. सबसे पहले हमेशा जब भी आप रोड पे वॉक कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. सेकेंडली, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हमेशा जब आप रोड पे वॉक करेंगे तो आप अपने फुटपाथ पे वॉक करेंगे या रोड के लेफ्ट हैंड साइड आपको वॉक करना चाहिए. थर्ड, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज अ फुट ब्रिज. रोड क्रॉस करने के लिए आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए या फिर फुट ब्रिज का यूज करना है. देन फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एंड हमेशा आपको ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने चाहिए. Okay, you can see this is the zebra crossing which these people are using to cross the road. This is a footpath where this lady and this man or the other people are walking on the cross the road only when the pedestrian traffic light is green. अब आपको रोड तभी क्रॉस करनी है जब पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन होगी. पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज द लाइट which is for those people who are walking on the road. Okay, next, if there is no traffic light and अगर वहां पे ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको ट्रैफिक पुलिसमैन के सिग्नल्स को फॉलो करना है. ओके, और लुक राइट देन लुक लेफ्ट एंड अगेन लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग अ रोड. और इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक पुलिसमैन भी वहां पे नहीं है उनके सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले अपने राइट हैंड साइड देखिए, देन लेफ्ट हैंड साइड, देन अगेन राइट हैंड साइड देखने के बाद इंश्योर करके कि कोई व्हीकल आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी आप रोड पे नहीं खेलेंगे. Do not run across the road. रोड पे भागना नहीं चाहिए. And stay on the left hand side of the road while riding a bicycle. And bicycle को राइड करते हुए, यानी कि जब आप बाइसाइकिल चला रहे हैं ऑन द रोड, तो आपको अपने हमेशा रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहना चाहिए. These were the safety measures which we all should follow on the road. And now we are going to talk about safety at home. Okay, number 1, do not play with sharp objects like blade and knives. ठीक है, तो सूरज जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स है लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर्स, इन सभी से हमें खेलना नहीं चाहिए बिकॉज ये काफी हार्मफुल हो सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट कि इनसे हमारी स्किन पे कट आ सकता है. सेकेंडली, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर. यू और समवन एल्स मे ट्रिप ओवर देम. आपको अपने टॉयज या कोई भी बिलोंगिंग्स को
फ्लोर पर फैलाकर नहीं रखना चाहिए, आप उनको अपने करेक्ट एक राइट प्लेसेस पे रखेंगे, अदरवाइज आप या कोई भी अदर पर्सन उस पर ट्रिप होकर गिर सकता है। इफ यू स्मेल गैस डू नॉट लाइट अ मैस्टिक, अगर आपको घर में स्मेल आ रही है गैस की, लीकिंग गैस की, तो आपको वहां पे मैस्टिक को लाइट नहीं करना है। ऑल्सो यू मस्ट नॉट प्रेस ऑन और ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच, और उसके साथ साथ ना ही आपको उस टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन और ऑफ करना चाहिए। ओपन द विंडो इमीडिएटली, एंड घर में जो विंडो है सारी आपको तुरंत उन्हें ओपन करना चाहिए। वियर कॉटन क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन, किचन में वर्क करते वक्त हमेशा कॉटन क्लोथ हमें पहनने चाहिए। वॉक केयरफुली ऑन द बेडरूम फ्लोर, इट मे बी स्लिपरी, एंड हमेशा आपका जो बेडरूम फ्लोर है वहाँ पे आप केयरफुली वॉक करेंगे, बिकॉज वो स्लिपरी हो सकता है, वहां पे हम गिर सकते हैं, वी मे स्लिप ओवर देयर। डू नॉट प्ले विद मैस्टिक्स और विद फायर एज यू मे गेट बर्न, आपको कभी मैस्टिक या फायर के साथ नहीं खेलना है, बिकॉज वी मे गेट बर्न इन दैट केस। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, आपको इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग, सॉकेट, हॉट आयरन और हीटर्स, ये कभी भी इन चीजों को टच नहीं करना है, बिकॉज यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक इन दैट केस। ओके, नेवर टच द गैस स्टोव और पीप इनटू एनी यूटेंसिल ऑन द स्टोव। ओके, किसी भी गैस स्टोव को आप टच नहीं करेंगे, एंड ना ही अगर कोई यूटेंसिल स्टोव के ऊपर रखा है तो आप उसमें झांकने भी कोशिश नहीं करेंगे। ओके, नेवर क्लाइम ऑन विंडोज एंड शेड्स, विंडोज एंड शेड्स पे आपको क्लाइम नहीं करना है, चढ़ना नहीं है, बिकॉज इन दैट कंडीशन यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। डू नॉट रन ऑन स्टेयरकेस, यू कैन ट्रिप एंड फॉल, आपको स्टेयरकेस यानी कि जो आपके स्टेयर्स हैं वहां पे रन नहीं करना है, बिकॉज वहां पे आप गिर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दे हैव गिवन यू सम ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, एक्सीडेंट्स जनरली अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, तो एक्सीडेंट्स जनरली हमारी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही से होता है, तो यस इट इज ट्रू। वी शुड क्रॉस द रोड बाय यूजिंग अ फुटब्रिज, आप रोड को क्रॉस करने के लिए फुटब्रिज का यूज कर सकते हैं, तो यस ट्रू। सेकेंडली, इन किचन वी शुड वेयर वुलन क्लोथ्स, किचन में हमें वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए, फॉल्स। वी शुड यूज और वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। वी शुड नॉट पीप इनटू यूटेंसिल ऑन द स्टोव, स्टोव पे जो यूटेंसिल रखा है आप उसमें पीप नहीं करेंगे, तो यस इट इज ट्रू। Now next we have safety at school and classroom, अब कुछ safety measures हैं जो हम school and classrooms में follow करेंगे, because after the home we spend most of the time at our school only. Okay, number 1 we have use a sharpener to sharpen your pencil and not a blade, अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए आप हमेशा शार्पनर का यूज करेंगे, you are not going to use a blade for that purpose. Okay, secondly, do not jump on the benches and the desk you may fall, benches desk जो आपके स्कूल में है आप उन पे क्या जंप नहीं करेंगे, बिकॉज यू मे फॉल ओवर देयर। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो चॉक, पेपर, बॉल, ये सभी चीजों को आप अपने अदर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स या क्लासमेट्स पे यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट पुश और पुल एनीवन। ओके, नेक्स्ट, वॉक इन अ लाइन एंड स्टैंड इन अ क्यू वेयरएवर नेसेसरी, हमेशा एक लाइन में वॉक करना चाहिए स्कूल में, एंड जहां भी जरूरत है आप वहां पे एक क्यू यानी कि एक लाइन बनाकर खड़े रहेंगे। नेवर रन अराउंड बेंचेस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बेंचेस के अराउंड यू शुड नॉट रन, एंड डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स ऑल्सो। ओके, देन वी हैव सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, यानी कि जब आप प्लेग्राउंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है। तो ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, सबसे पहले जो भी आप गेम खेल रहे हैं उनके रूल्स को जरूर फॉलो करेंगे। सेकेंडली, वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न का आपको वेट करना चाहिए, यू शुड नॉट चीट इन दैट गेम। डू नॉट प्ले केयरलेसली। ओके, डू नॉट हिट एनीवन व्हाइल प्लेइंग, ऑल्सो डू नॉट पुश ईच अदर, खेलते वक्त किसी को आप हिट नहीं करेंगे, किसी भी अदर पर्सन को पुश नहीं करेंगे। प्ले ओनली इन अ प्ले ग्राउंड और इन अ पार्क, नेवर प्ले ऑन द रोड, हमेशा प्ले ग्राउंड या पार्क पे ही आपको खेलना चाहिए, कभी रोड पे यू आर नॉट गोइंग टू प्ले। Then while on swing or merry go round, do not push others. ठीक है, अगर आप swing पे हैं या merry go round पे हैं तो आप किसी भी other person को push नहीं करेंगे in that condition. Keep the playground clean. हमेशा playground को clean रखना चाहिए. Do not throw plastic bags or fruit pills on the ground or else you or someone else may trip on it. And किसी भी प्लास्टिक बैग या फ्रूट या वेजिटेबल की पील्स को आप ग्राउंड पे थ्रो नहीं करेंगे, बिकॉज in that condition you or someone else may trip over them and then can fall.
Then next we have what safety in a bus. अब एक बस के अंदर क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करने हैं. So number 1, stand in a queue while waiting at the bus stop or while boarding the bus. ठीक है, जब आप बस का वेट कर रहे हैं या बस में इस तरीके से बोर्ड यानी कि चढ़ रहे हैं, तो हमेशा एक क्यू में ही you should stand. Do not lean out or peep out or put your hand out of the window of a moving bus. एक चलती हुई बस से ना तो आपको बाहर की तरफ लीन करना चाहिए. You should not peep out of the bus. एंड ऑल्सो आपको अपने हैंड या किसी भी बॉडी पार्ट को भी विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए व्हेन यू आर इन अ मूविंग बस और एनी मूविंग व्हीकल. डू नॉट क्लाइंब इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस. एक मूविंग बस में ना तो आप कभी चढ़ेंगे एंड ना ही कभी भी उतरेंगे. यू शुड वेट फॉर द बस टू गेट स्टॉप, देन ओनली यू शुड बोर्ड इन और यू शुड गेट आउट ऑफ इट. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर एंड ऑलवेज सिट क्वाइटली इन द बस. बस ड्राइवर को जब वो ड्राइव कर रहे हैं आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंड हमेशा शांति से अपनी जगह पर आपको बैठना चाहिए. So these were the safety measures which we all should follow at the different places. Now next we have the topic of first aid. First aid is the first help given to an injured person after an accident before the doctor's arrival. We must inform our parents or teachers when an accident occurs. We must keep a first aid box handy at home or school. So what they're saying is, first of all, what is first aid? तो स्टूडेंट्स जब भी कोई एक पर्सन इंजर्ड होता है, उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले जो सबसे पहला हेल्प या सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फर्स्ट एड. एंड फर्स्ट एड में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स या टीचर्स या किसी भी एडल्ट को आपको इन्फॉर्म करना है व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्स. ओके, एंड एक फर्स्ट एड बॉक्स आपको हमेशा हैंडी रखना चाहिए अपने घर पे या अपने स्कूल में. ओके, इन अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम और इन स्कूल. फिर वो जो फर्स्ट एड बॉक्स है जो आप अपने घर में रखते हैं या अपने साथ स्कूल में रखते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो जरूरी होनी चाहिए. लाइक वी शुड कीप एन एंटीसेप्टिक लोशन, स्टिकिंग प्लास्टर, कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर्स, पेन रिलीविंग स्प्रे एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द थिंग्स विच शुड ऑलवेज बी देयर इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, then we should keep some points in mind while giving first aid. And किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते वक्त आपको ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं. नंबर 1, विदाउट वेस्टिंग टाइम एक्ट क्विकली. सबसे पहले जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पर टाइम वेस्ट किए बिना आपको तुरंत एक्शन लेना है. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. जो इंजर्ड पर्सन है उनके चारों तरफ आपको भीड़ नहीं लगानी है. इन्फॉर्म एल्डर्स अराउंड यू इमीडिएटली अबाउट द एक्सीडेंट. एंड उस एक्सीडेंट के बारे में आप किसी भी एल्डर वन को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे. वॉश योर हैंड्स बिफोर यू टच अ वुंड. किसी भी वुंड को टच करने से पहले आपको अपने खुद के हैंड्स अच्छे से वॉश करने चाहिए. इफ देयर इज ब्लीडिंग, ट्राई टू स्टॉप इट. लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल. एंड अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करनी है, बिकॉज ब्लड का अगर ज्यादा लॉस होता है इट कुड बी हार्मफुल टू अ पर्सन. ओके, नेक्स्ट, क्लीन द वुड विद रनिंग वाटर. फिर उस वुंड को आपको एक रनिंग वाटर यानी कि साफ चलते हुए पानी से क्लीन करना है. एंड फिर उसके बाद आप वहां पे एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करेंगे. मेक श्योर दैट द इंजर्ड पर्सन हैव एनफ फ्रेश एयर टू ब्रीथ. और इस चीज का ध्यान रखना है कि एक इंजर्ड पर्सन जो है उन्हें एक अच्छा खासा फ्रेश एयर मिलना चाहिए टू ब्रीथ, सो दैट वो वहां पे काम रहे एंड पैनिक ना करें. There's a fun fact which they have given you. Ancient Egyptians used honey for dressing wood. कि एशियन टाइम पीरियड में जो इजिप्टियंस थे वो हनी का यूज करते थे वुड्स की ड्रेसिंग करने के लिए. दैट मीन्स हनी एक्ट एज अ मेडिसिन ऑल्सो. इट एक्ट एज एन एंटीबायोटिक ऑल्सो. नाउ दे हैव गिवन एन एक्टिविटी टू डू, लर्निंग हाउ टू बैंडेज हैंड एंड हेड. यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे हैंड एंड हेड की बैंडेज करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं. यू नीड 2 rolls of bandage with a first aid box. Okay, now what you have to do, the method which they have given you. First of all, the teacher should ask 2 students to come and sit across from each other. Okay, and one of them shall bandage the other's hand following the steps given here under. So क्या क्या steps हैं bandage करने के लिए. Make 2 straight turns of the bandage at the wrist inside to outside. आपको 2 straight turns जो है इस bandage के करने हैं रिस्ट पर, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ. फिर इस बैंडेज को आपको डायगनली टर्न करना है फ्रॉम थंब टू फिंगर. एंड अनदर 1 or 2 टर्न्स अक्रॉस द फ्रंट ऑफ फिंगर्स. एंड अनदर 1 or 2 टर्न्स, और भी 1 या 2 टर्न्स जो है आप अपने फिंगर्स के फ्रंट के अक्रॉस करेंगे. 1 or 2 टर्न्स ऑफ बैंडेज अक्रॉस द
बैक ऑफ हैंड और 1 या 2 टर्न्स उस बैंडेज के आपको अपने हैंड के पीछे की तरफ करने हैं. Lastly, she will repeat all the turns once more and tie a knot at the end. And last में आपको सारे turns एक बार दोबारा से सभी repeat करने हैं and at the end you should tie a knot over there. Next, the other student, अब उसके बाद जो दूसरा student है वो अब पहले वाले student के head पे bandage करेगा with the steps which they have given you. Number 1, start with the triangular bandage. सबसे पहले आपको triangular bandage से start करना है. तो the longest edge, इसकी जो edge है सबसे longest वाली वो आपके forehead के ऊपर होनी चाहिए. Secondly, cross over the long tails of bandage using firm pressure. इसके बाद आप जो bandage की long tails है उसको cross करेंगे एक firm pressure बनाकर. Tie the tails in the middle of her forehead and secure the spare end with the safety pin. And उसके बाद आपको जो tail वाला part है उस bandage का उसको आपको forehead के middle में tie करना है and उसको जो उसका spare end है उसको आप safety pin से secured कर देंगे. So like this you have to tie a bandage over the head or the hand part of an injured person. That's all for the chapter. I hope you must have understood these safety measures and some first aid measures which we all should keep in our mind in the case of any emergency. Okay, but overall, what is there? That's our safety is in our hand. So we should try to avoid these accidents only. Okay, for that, what you would do, you can follow these safety rules at every place so that the accidents do not happen only. Okay, so let's meet in the next session of the science class. So then keep going well and thanks to everyone.